So welcome back again. So we are starting with today the new topic that is collection framework. So as part of interview, as part of the work, this is one of the most used framework in Java. And when I come across this word framework, so you should have a clear understanding what exactly framework is. Anyone knows what is framework? Perfect. So framework or libraries, you will come across this word. So whenever you come across this word framework or libraries, it simply means there is something already defined or already written some kind of code. Semi-built application also you can say. Semi-built application or some predefined set of code. Now, if it is a Java-based framework, what it means? If it is a Java-based framework, when I say framework is a Java-based, जावा में हम मोस्टली प्री डिफाइंड क्लास होंगे हमारे पास. सो फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड. इट इज ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोल सकते हो. एग्जाम्पल जैसे ईमेल भेजना है मुझे या एसएमएस भेजना है. सो व्हाट डू यू थिंक ईमेल भेजने का लॉजिक अभी तक किसी ने नहीं लिखा होगा क्या? या एसएमएस भेजने का लॉजिक या फाइल अपलोड करने का, फाइल डाउनलोड करने का या कन्वर्ट करने का फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट. तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे जिसका लॉजिक ऑलरेडी किसी ना किसी ने लिखा होगा. राइट नाउ फ्रेमवर्क इज वन पार्ट. फ्रेमवर्क इज वन पार्ट वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्या समझना है आपको कि एक्चुअली ये प्रोग्राम्स क्या है और कौन से प्रोग्राम्स हम यूज कर सकते हैं whenever you try to learn any framework. So let's try to understand framework, any predefined set of programs. Can I say it is pre-built application, semi-built application, semi-built application? Can I say? Semi-built application, right? Now tell me, if it is a Java-based framework, तो कोड कैसे रहेगा? जावा में रहेगा. So frameworks can be developed, programs can be written in different programming languages. If there are lots of predefined programs are there which we can use that are written in Java, so that we will call it as Java-based frameworks. So we have different frameworks. So frameworks are also called as a set of solutions. Set of solution बोल सकते हो आप. Set of solutions. So framework are nothing but set of solutions provided for a set of problems. तो आपके पास solutions है which are there for some set of problems. You had some problems and for that problem we have a solution. Example, मुझे email भेजना है. So that is your problem statement. I want to send an email, but how to send an email? I don't need to write that once again. Logic is already written. Let's say I want to sort an array. The logic is already written. Let's say I want to search an element into given set of elements. The logic is already written. So I don't need to write that. So we have to understand what solutions are there and what is the problem. What is the set of problem. मैं जब भी कोई framework मतलब when I try to explain it is similar to जैसे आप कोई घर बनाना चाहते हो from scratch. You want to construct your own house. So do you construct cement? मतलब सीमेंट खुद से बनाते हो क्या आप? Bricks, steel खुद से नहीं बनाते हो, right? Why? Already pre-built है, right? Now if you try to build that from scratch, what is going to happen? आपका घर नहीं बनेगा. आपको पहले सीमेंट की फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, फिर ब्रिक्स बनाने के लिए अलग से कुछ सेटअप करना पड़ेगा. So if you do that way, it will take longer time to build your actual house. So similarly, if you want to build an application, software application you want to build, what is going to happen? If you write everything from scratch, if you are not reusing the code which is already there, it is going to take a lot of time. It is going to take lot of time. Now tell me, आपकी expertise है क्या उसमें?
It is not necessary that you are expert in every aspect of the programming. Now the logic is already written. You have to just reuse that. You have to just reuse that. So what is exactly framework? It is a predefined set of solutions for a set of problems. Now different frameworks are there. So Java based frameworks. इसका मतलब frameworks which are written in Java. So one of that we have collection framework. Then later on we are going to learn Hibernate. Then we have Spring. एंड स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क्स हैं. स्प्रिंग कोर, एमवीसी, जेडीबीसी, टेम्पलेट, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलरली वी हैव पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क्स. पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क्स. So if you come across Django, we have Django web app framework, we have Django, उसी के अंदर Django ORM, we have Django, we have REST, then we have Flask, and n number of frameworks are there. Then we have JavaScript based और C# based frameworks. C# based frameworks मतलब कोड किस में लिखा होगा? C# में. जैसे .NET आपने सुना होगा, ऐसा कुछ फ्रेमवर्क्स है. PHP बेस्ड फ्रेमवर्क. PHP इज आल्सो वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे वहां पर लारावेल आपने सुना होगा. देन वी हैव जावास्क्रिप्ट बेस्ड. वी हैव एंगुलर. Angular is, now there is one more word that is called as library. Are library and framework same? So frameworks are little bit, it is a pre-built solution. Frameworks are more strict and rigid. Frameworks are mostly more rigid and strict. मतलब जैसा है वैसे यूज करना पड़ेगा आपको. But library is also predefined set of code. It is also predefined set of code. It is also predefined set of code. अब library और framework दोनों in exchange यूज होता है, but library is more flexible. Libraries are more flexible. लाइब्रेरीज आर मोर फ्लेक्सिबल. तो आपके पास, आपने सुना होगा कुछ लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज जावा बेस भी है, जावास्क्रिप्ट बेस भी है. सो जावास्क्रिप्ट बेस आपने सुना होगा लाइब्रेरीज. एनीवन हु हैज डन विद द जावास्क्रिप्ट? रिएक्ट, देन नेक्स्ट.जेएस, और भी बहुत सारी है. देयर आर लॉट ऑफ लाइब्रेरीज. तो लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क बोथ आर सिमिलर टू predefined set of code, but frameworks are something very rigid. They will tell you do this, that's how you are going to follow, but that is not the case with libraries. आपको libraries थोड़ा सा flexibility वहां पर मिल जाता है. Clear है? Now what are the advantages of using this? If I'm using framework or libraries, so what are the advantages? फायदे क्या है? आपको फिर से पूरा स्क्रैच से लिखने की जरूरत है क्या? यू कैन रीयूज द कोड. तो उससे क्या होगा? रिड्यूस डेवलपमेंट एफर्ट्स. क्या होगा? रिड्यूस्ड डेवलपमेंट एफर्ट्स. आपको फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू राइट दैट वंस अगेन, इट इज ऑलरेडी देयर. अब कोड नहीं लिखना है तो उसको टेस्ट भी करने की जरूरत है क्या? रिड्यूस डेवलपमेंट एफर्ट्स, टेस्टिंग एफर्ट्स. वो कोड आपका ऑलरेडी लिखा है, वो टेस्टेड ही होगा.
So you don't need to write the code once again. You don't need to write that code. So means you don't need to test that once again. तो testing efforts भी आपका कम हो गया. Think of हमने लेट्स से मैंने आपको बताया था कि इफ आई वांट टू स्टोर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, हमारे पास क्या ऑप्शन था? क्रिएट दैट मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स. दूसरा ऑप्शन था क्रिएट अ कैरेक्टर एरे. तीसरा आपके पास स्ट्रिंग कुछ ऑप्शन था, राइट? अब मुझे बताओ, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स से उसको अपर केस करना है, लोअर केस करना है. अगर किसी ने उसको एक बार लिख के नहीं रखा होता, इफ देयर इज नो फ्रेमवर्क, तो हर कोई अपने हिसाब से कोड लिखेगा. यू विल राइट योर ओन वे. लेट्स से तुम्हें अपर केस करना है, यू विल राइट योर ओन लॉजिक. तुम्हें भी करना है, यू राइट योर ओन लॉजिक. अगर वो कहीं एक बार नहीं लिखा होगा था, सो एवरीवन विल राइट देयर ओन वर्जन ऑफ कोड. तो इससे क्या होगा? कोड डुप्लीकेट होगा, राइट? कोड डुप्लीकेट होगा और सब कोई अपना अपना वर्जन लिखेगा. तो दैट इज नॉट द इफिशिएंट वे. अगर आप फ्रेमवर्क में वही चीज ऐड करते हो, एवरीवन कैन यूज दैट कोड, तो उससे क्या होगा? सेम कोड आप यूज कर रहे हो. You are not writing the code once again. So that is a uniform code base. You will have uniform code base. इससे क्या होता है? कोड डुप्लीकेशन आपका हट जाता है. These are the some of the benefits. But ऐसा नहीं कि लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है. So everything has some pros and cons, right? So it has some disadvantages also. क्या disadvantages है? Yes. What do you think? Let's say अक्षय ने कोड लिखा है इसको, अक्षय ने फ्रेमवर्क बना दिया, तो डू यू ट्रस्ट अक्षय? उसने तो फ्रेमवर्क बना के दे दिया आपको. He has written the code, but what might go wrong? उसने जो लिखा है वो सही हो ऐसे कुछ गारंटी है क्या? Is it necessary that code is going to be like bug free? जैसे आपने ये फ्रेमवर्क ले लिया, उसी के साथ आप उसकी रिस्क भी ले लेते हो. इफ देयर आर एनी बग्स, यू कैरी ऑन बग्स. इफ देयर आर एनी सिक्योरिटी इश्यूज, यू कैरी ऑन दैट विद योरसेल्फ. हाँ, कितना भी टेस्ट करो, कितना भी टेस्ट करो आप, there will be someone who will find some flaws, some errors. क्या लगता है आपको, स्प्रिंग फ्रेमवर्क जावा में उसमें बग्स नहीं है क्या? बग्स नहीं है क्या उसमें? यस, देयर आर. You can just Google out and you will find out what are the bugs are there. Now frameworks are of two types. एक तो फ्री हो सकते हैं, can be open source or paid. Mostly frameworks and libraries you will find it as free, open source. मतलब लोग उसे contribute करते हैं. That are open source. पेड है मतलब वहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा, बट यूजुअली इट विल बी फ्री, ओपन सोर्स रहेगा. सो एवरी फ्रेमवर्क कम्स विद सम एडवांटेजेस, सम डिसएडवांटेजेस, right? Now if there is some security issue, if the framework is actively maintained, then you are safe. But if you use a framework which is not actively maintained, which is not actively maintained means उसको किसी ने एक बार बना दिया और उसको बाद कोई नहीं देख रहा है उसको, then that is a not a perfect solution, right? So every framework comes with advantages, disadvantages. अब अगर उसमें बग आ गया तो आपके पास ऑप्शन है कि क्या ऑप्शन है? एक तो खुद फिक्स करो,
एक तो खुद फिक्स करो या वेट करो, वो फ्रेमवर्क वाले जब फिक्स करेंगे उसे। सो टू ऑप्शंस आर देयर, सो देयर माइट बी। और मुझे बताओ इसका एक और एडवांटेज, सिक्योरिटी इश्यूज क्या हो सकते, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इश्यूज। जैसे कोड ओपनली अवेलेबल है फ्रेमवर्क का, लेट्स से ओपन सोर्स है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, डेवलपर भी एक्सेस कर सकता है और हैकर भी, जो भी मतलब जिसका इंटेंशन खराब है, he can exploit that code, he can exploit that code and find some loopholes in that। कोड तुम्हारे पास भी है, उसके पास भी है, बट तुम तुम्हारे बिजनेस यूज के लिए यूज कर रहे हो, बट वो बंदा किसके लिए कर सकता है, यू डोंट नो दैट। ही कैन यूज दैट फॉर फाइंडिंग सम लूप होल्स एंड इंजेक्ट सम इश्यूज। तो बहुत सारी फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी बग्स भी आती है, सिक्योरिटी इश्यूज भी आता है, जिससे आप मतलब बहुत सारी मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी और बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क में इश्यूज आए हैं, जिसकी वजह से आपने सर्वर साइड ऑब्जेक्ट्स कस्टमर को अपने फ्री में दे दी थी। सो कस्टमर साइड ऑब्जेक्ट्स यू आर एबल टू एक्सेस, सिक्योर रिसोर्सेस आल्सो यू आर एबल टू एक्सेस। इफ दैट इज द केस देन यू हैव टू कम विद दैट, सो अंडरस्टैंड दैट। बट अभी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम सम ब्राइटेस्ट माइंड इन द इंडस्ट्री। गूगल हो गया, मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, इन कंपनीज के जो डेवलपर्स है, दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन फ्रेमवर्क्स टू मेंटेन दैट एक्टिवली। तो नाउ डेज इट इज गुड दैट वी हैव लॉट ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, तो फ्रेमवर्क्स अच्छे खासे बने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? What is a framework? What is a library? What are the advantages? What are the disadvantages? Make sense? चलो आगे बढ़ते हैं। Now the title of this today's class is collection framework. What is the title? Collection framework. So you might be asked in interviews, do you know collection framework? Yes, you can say that at the end of the class that you know collection framework. Now what is collection framework and where it is? अब जरूरी नहीं कि कलेक्शन या कोई भी फ्रेमवर्क आपकी लैंग्वेज के साथ प्री बिल्ट है। लैंग्वेज पहले डेवलप हो सकती है, बाद में कोई उसे और बना। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज समथिंग लेटर ऑन डेवलप, इट इज नॉट डेवलप बाय जावा पीपल। नाउ डू यू थिंक आर जावा पीपल गोइंग टू डेवलप एवरीथिंग? नो, देयर आर लॉट ऑफ अदर डेवलपर्स, दे आर गोइंग टू डेवलप देयर ओन सॉल्यूशंस। जैसे हाइबरनेट हो गया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, दीज आर नॉट डेवलप बाय जावा पीपल, this is developed by some other developers in the market, right? But collection framework, it is something which comes as part of your standard JDK. Collection framework comes as a part of standard JDK. So it is a Java based framework, it is a Java based framework। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अलग से फ्रेमवर्क लेके आने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। कोड दैट इज ऑलरेडी कम्स प्री बिल्ट विद स्टैंडर्ड जेडीके, बट दैट इज नॉट द केस विद हाइबरनेट और स्प्रिंग। वो किसी ने अलग से लिखा, आपको यू हैव टू गेट दैट कोड ऐड टू योर प्रोजेक्ट, दैट इज अ लेटर थिंग। बट यहाँ पर आपको कुछ अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज अ जावा बेस्ड फ्रेमवर्क विच कम्स विद स्टैंडर्ड जेडीके। तो जावा बेस्ड है मतलब इसमें क्या होगा मोस्टली? it contains Java classes, interfaces, methods, right? अब ये उन्होंने कहां पर रखा है? एक पैकेज में रखा है। यू विल फाइंड दिस इन अ पैकेज java.util। util stands for utility kind of। तो ये वाला पैकेज में आपको ये सारी क्लासेस, इंटरफेसेस देखने मिलेगी। ठीक, सो दो लाइन तो ये समझ में आया कि इट इज अ प्री बिल्ड सॉल्यूशन, इट इज अ जावा बेस्ड फ्रेमवर्क, जावा में लिखे क्लासेस, इंटरफेसेस विच इज ऑलरेडी देयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ठीक है जावा बेस्ड है, प्री डिफाइंड है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर दैट दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडिंग अस सॉल्यूशंस? क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सॉल्यूशंस है? वी नीड टू अंडरस्टैंड।
ये फ्रेमवर्क यानी प्रॉब्लम्स देता है या सॉल्यूशंस देता है? तो सॉल्यूशंस दिया है, लेकिन कौन से प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्यूशन दिया है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या इन्हीं प्रॉब्लम में से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन यू कैन यूज दैट सॉल्यूशन। ऐसा है क्या मतलब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया उन्होंने? नहीं। सो दे हैव सम प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फॉर दैट दे हैव सम set of solutions. So we need to understand what problems we are facing. So is it similar? Is it the solution provided in that particular framework? Then only use that framework. अगर solution आपके लिए जरूरी नहीं है तो does it make sense to use that framework? Framework use करना कब make sense करता है? When it makes sense? जब आपकी problem का solution वहां पर है, then that makes sense to use a framework or library. Otherwise कोई जरूरत नहीं है। तो एक लाइन में आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क का मैं आपको बता दूं कि व्हाई कलेक्शन फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड एंड व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्स। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट इज अ बिगर प्रॉब्लम। इट इज नॉट ओनली वन प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग, it is solving lot of small problems, but at one line I can tell you what exactly it is solving. So collection framework provides lot of predefined classes, interface and methods. इसके अंदर logic क्या लिखा है? So there are lot of things, right? So I told you two things: data structure and algorithm, if you remember. So what data structures and algorithm? So data structures are nothing but containers, and उस container के ऊपर कुछ operations करना है, that are nothing but algorithms. So that we know that, right? So data structures are nothing but. So what are data structure? It is a structure or a container using which we can store data in an organized manner. ये आपको पता है container है। Examples we have array, stack, queue and so on. Linked list, ये कुछ आपके पास options हैं, right? So data structure create करना, data structures are designed in Java using classes and interfaces. तो कोई भी कंटेनर है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या बनता है? क्लास, प्लान बनता है। कंटेनर यानी कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? सो आई होप ये आपको याद होगा। जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है हमें? क्लास। तो आपको क्या चाहिए? कंटेनर चाहिए। थिंक ऑफ अ विजुअलाइज अ फिजिकल कंटेनर। सो यू नीड दैट ऑब्जेक्ट, वो वाला ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले क्लास होगा। यू नीड टू स्टोर डेटा, देन व्हाट वी नीड टू डू? कंटेनर चाहिए। कंटेनर कैसा मिलेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। सो ध्यान रखना, सो डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन्ड इन जावा यूजिंग क्लासेस एंड interfaces. So if we need a container, if we need a container object, we need to create a object of a class. Object चाहिए, that's it. तो कंटेनर बनने से पहले वो दिखेगा कैसे, ये डिफाइन करना, मतलब क्लास क्रिएट करना। And what are algorithms that we already talked about? So I am telling you this stuff because this is something we are going to learn. So data structure यानी कंटेनर, अलग अलग कंटेनर से फॉर अलग अलग रिक्वायरमेंट। जैसे हमारे पास घर में अलग अलग कंटेनर से फॉर डिफरेंट पर्पस, ग्लास है, बॉटल है, अलग अलग तरीके की, राइट? सो एल्गोरिथम्स आर नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, set of instructions to perform a task. So we can say operations performed on a container, ऐसे भी बोल सकते हो। Example add, remove, search, then sort, ये अलग अलग आपके पास
एक कंटेनर उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है आपको, तो क्या कर सकते हो एक कंटेनर, so you can add elements, remove elements, check elements are there or not. ये सारे आपके ऑपरेशंस हो गए, उसी ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कुछ अलग नहीं है, इट इज जस्ट अ फंक्शनलिटी और ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म दैट पर्टिकुलर कंटेनर। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, व्हाई, बिकॉज कलेक्शन फ्रेमवर्क provides, so what is the Java collection framework is a unified set of ready-made data structures and algorithms. क्या है ये? The Java collection framework is a unified set of ready-made data structures and algorithms for sorting, searching and so on. सर्चिंग हो गया किसके लिए, सर्चिंग, देन रिट्राइव करने के लिए, एंड मैनिपुलेटिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज दिस? It is a ready-made solution, a set of ready-made data structures and algorithms for sorting, searching, retrieval, then manipulating group of objects. क्या है कलेक्शन फ्रेमवर्क में? सेट ऑफ प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब डेटा स्ट्रक्चर का आपको पता है कि क्या काम होता है, कंटेनर मिलेगा, कंटेनर के अंदर डेटा स्टोर करना, डेटा स्टोर करने के लिए एल्गोरिदम्स है। कंटेनर का काम क्या होता है, यू हैव अ कंटेनर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम मल्टीपल चीजें रख सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम रख सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइक हैविंग अ कंटेनर। और कंटेनर के ऊपर क्या ऑपरेशन कर सकते हो, ऐड करना, रिमूव करना, सर्च करना, सॉर्ट करना, डेटा रिट्रीव करना, ये यानी एल्गोरिदम्स। क्या है आपके पास, कंटेनर्स है और एल्गोरिदम्स। कंटेनर्स है यानी यू नीड अ कंटेनर ऑब्जेक्ट, सो व्हाट यू नीड, यू नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। सो डेटा स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, बिहेव कैसे करेगा, ये कैसे लिखा होगा, यूजिंग अ क्लास। हाउ अ डेटा स्ट्रक्चर लुक लाइक्स, how data structure look likes, and how a data structure object look like। डेटा स्ट्रक्चर और कंटेनर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप, look likes and behaves। it is represented it is represented using classes and interfaces, classes interfaces। so you need a container object, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क ने दिया क्या है आपके लिए, कलेक्शन फ्रेमवर्क ने आपको दिया है कि आपको अगर अलग अलग टाइप के कंटेनर ऑब्जेक्ट चाहिए, अलग अलग कंटेनर चाहिए टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फॉर अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, दे हैव क्रिएटेड अ सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। यानी डेटा स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे और उसके ऊपर क्या क्या फंक्शनलिटी या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये उन्होंने ऑलरेडी लिखा है। अब मुझे क्या करना है, लेट्स आई वांट टू स्टोर 10 वैल्यू, ऐसे कुछ स्टोर करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे, एरे यूज कर, बट आई डोंट नीड टू यूज एरे नाउ, वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, दैट इज वन ऑप्शन।
array भी create कर सकते हो, but array has its own set of problems. What are the problems with array? That we already know. We know, like, before I talk about why collection framework, that is a question, right? But before that, you need to understand why, what are the problems with the array. If I use array, what are the problems? Fixed in size, fixed in size. So we'll talk about that, why data, this particular collection. यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? I talked about three to four things. पहले framework library क्या होता है? Predefined set of code, which is nothing but set of solutions. Then I talked about data structure and algorithm. Data structure यानी container समझो आप. जैसे हमें रियल लाइफ में कंटेनर चाहिए होते कुछ स्टोर करने के लिए, वैसे प्रोग्रामिंग में भी हमें कंटेनर चाहिए. तो कंटेनर प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं क्या? डेटा स्ट्रक्चर्स. अब डेटा स्ट्रक्चर कंटेनर दिखेगा कैसे? ये पहले डिजाइन किया जाता है यूजिंग क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन जावा. Then once we have the class, we create an object of that particular class and we get a container object. अब collection framework is a Java-based framework which comes with standard JDK. You don't need to get it externally. It is part of JDK, where it is present in java.util package. We have a lot of predefined classes and interfaces. Then what exactly collection framework provides? It is a unified set of ready-made data structures and algorithm जिसका यूज करके आप डेटा स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, एंड सो मेनी थिंग्स. So how a data structure or container object look likes and behaves, it is represented using classes and interfaces. So इसको ऐसे भी समझ सकते हो, data structures are represented using classes, interfaces, and algorithms are implemented. Algorithms are represented using methods. ठीक, यहां तक क्लियरिटी है? क्या है कलेक्शन फ्रेमवर्क? रेडीमेड सेट ऑफ So you understand what exactly collection framework is. क्या है collection framework? Predefined set of data structures and algorithms जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो? So using collection framework, we can store, manipulate बोल सकते हो instead of store. We can manipulate, we can store group of objects as a single unit. Using collection framework, we can store group of objects as a single unit, multiple values as a single unit. क्या कर सकते हो आप using collection framework? We can store group of objects as a single unit. तो आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है. यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, तो आपको क्या चाहिए? एक कंटेनर, और इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हो. मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, वैल्यू यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यू कैन थिंक ऑफ एज अ सिंगल यूनिट. दैट इज अ सिंपल आंसर यू कैन डू. अब बस स्टोर कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं. एक बार स्टोर करने के बाद मैनिपुलेट कर सकते हो. वी कैन स्टोर, मैनिपुलेट, we can store, manipulate group of objects as a single unit. Simple. यहाँ तक clearly समझ में आ रहा है what exactly it is doing. And the next bigger questions is why collection framework? Why collection framework? Now you need to understand framework. जब भी word सामने आता है, you need to understand the set of problems and set of
solutions that a particular collection or any framework provides. अभी प्रॉब्लम क्या है? So before I talk about this collection, what is the problem we are facing currently now? तो हमारा प्रॉब्लम क्या है और देखते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारा सॉल्व कर सकता है क्या फ्रेमवर्क. So what is the problem statement we are facing right now and why we are learning collection framework? So we have a simple problem. क्या प्रॉब्लम है? Store and manipulate group of values in an efficient manner. क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? स्टोर एंड मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन एन एफिशिएंट मैनर. तो आपके पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं? इफ यू नो द सॉल्यूशंस, if you want to store multiple values, we can create that many number of variables. Solutions is not the only one, we can have multiple. We can create that many number of variables to store values. अगर 1 लाख वैल्यू स्टोर करना तो 1 लाख वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा. इज इट एफिशिएंट? नो. देन वी हैव स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज array. So we can use an array to store multiple values. But there are certain problems with array. What are the problems? Fixed in size. Once, let's say I want to store, let's say 100 values. I created an array of 100. Then later on, I want to add few more values. Can you add that? No. I decided that I will store 100 values, but at runtime I stored only 5 values. What happened? Wastage. So there will be either wastage or shortage of memory. So that is the problem with the array. That is one option. Now let's say I want to search some elements in an array. तो logic आपको ही लिखना है. You want to remove some elements from that particular set of values. You have to write logic. You want to sort that values. You want to shift that values. Logic कौन लिखेगा? आप ही लिखोगे. So क्या है? No method support. These are the problems. और क्या है? Array में एक ही डेटा स्ट्रक्चर है. ओनली वन स्ट्रक्चर. कैसा है? लीनियर. ओनली वन स्ट्रक्चर यू हैव. So these are the problems with the array. So now let's try to understand why collection framework. Can you tell me now? Why collection framework? बोलो बोलो फटाफट. अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि what exactly framework library is, what are the advantages of using framework, what are the disadvantages. Then we talked about data structure, then we talked about algorithm, how data structures and algorithms are, and what collection framework is. Yes, Pushkar, what is collection framework? Okay. Is it Java based? Okay. Is it, do we need to download that somewhere else or it is already part of JDK? Which package it is present? Java.util package. Perfect. What is the, what collection framework provides? Predefined code. But what is that predefined set of code? Data structures and algorithms. So data structure दिया है, उन्होंने क्या दिया? Data structures are provided through classes and interfaces. तो उन्होंने ये दिया है, मतलब क्या दिया है? Using that classes and interfaces, you just need to create an object. You get a ready to use container object.
आपको क्या करना है, यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, सो फॉर दैट यू नीड कंटेनर. तो कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड सेट ऑफ data structures and algorithms. So data structures are provided through classes and interfaces, and algorithms are provided through methods. So let's say I want to store 100 values. What I need to do if I'm using collection framework? You just need to create a object of one of the class. You get a container object. You get a bigger container. Inside that, we can store multiple values. Right? That is a one liner we talked about. So what data, like what collection framework help us? It helps us store and manipulate group of objects as a single unit. For that purpose, we have a lot of predefined classes, interfaces, and methods. Right? Then we talked about our own problem. So what was our problem we are facing? I want to store multiple values efficiently. Then first option, create that many number of variables, not a efficient solution. Second, use an array. What are the problem with the array? It is fixed in size. Once array is created, you cannot increase or decrease the size. So there will be shortage or wastage of memory space. Then there is no method support with an array. Every requirement you are supposed to write logic. Third, only one structure. We have a linear data structure. There is nothing else. Now, what is the problem with the array? Let's say I want to delete an element. तो क्या करना पड़ेगा? Logic खुद लिखना पड़ेगा. लेकिन there are a lot of problems. Not only with this, array is best for one use case, but it is bad for some other use cases. One shoe does not fit for all. एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही कंटेनर आपके पास, तो वही कंटेनर हर एक रिक्वायरमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो. सो दैट इज नॉट एफिशिएंट. दैट इज नॉट एफिशिएंट. एक ही कंटेनर है आपके पास, एक ही स्ट्रक्चर है. जैसे अभी जस्ट इमेजिन आपके पास घर में बस एक ही ग्लास है, बाकी कोई कंटेनर नहीं है, चलेगा? सो वी नीड सम अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आल्सो, राइट? से अब एरे के साथ आप व्हाट इज देयर? यू हैव ओनली वन कंटेनर फॉर एवरी रिक्वायरमेंट. खाना इसमें, पीना इसमें, चलेगा ऐसे घर पे? नो, राइट? सो वी नीड मल्टीपल कंटेनर्स. जैसे रियल लाइफ में हमें मल्टीपल कंटेनर चाहिए होता है, वैसे प्रोग्रामिंग में भी हमें we need multiple containers. So that is not there with the array. So we need more structures, we need more containers. So how do I get that? Option है खुद create करो. But is it your expertise? सबकी expertise नहीं है. So what we can do? We can leverage already defined stuff. Now how do I create or how do I create multiple structures? You can, अब आपके पास है कि option 1, option 2. Option 1 है कि you have to decide what kind of structure you need, what kind of container you need, how it is going to look like, and what operations you can perform on that particular container. ये आपके पास option है पूरा scratch से लिखने के लिए, जो आप पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर की DSA की क्लासेस में, पूरा स्क्रैच से पूरा डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए. नाउ अदर ऑप्शन इज देयर मस्ट बी समथिंग, किसी ने ऑलरेडी लॉजिक लिखा होगा कि what are the different types of structures are there, how they are looking like, what operations we can perform on that, ये किसी ने लिखा होगा. So that is something we get ready made with the help of collection framework. तो क्या क्या अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे आपके पास स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, देन आपके पास ट्री है, ग्राफ है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर देयर. तो अभी यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन स्ट्रक्चर. आपके पास अभी एक कंटेनर नहीं है. विद कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट? नाउ व्हाई कलेक्शन फ्रेमवर्क? इफ समवन इज आस्किंग इन इंटरव्यूज, सो व्हाट यू कैन टेल देम? सो बिफोर collection framework, what was the life? You have to just tell them. So before collections, जावा डेवलपर को क्या क्या करना पड़ता था? जावा डेवलपर्स यूज्ड एरेस. जावा डेवलपर अभी तक हमने क्या यूज किया? एरे यूज किया. बट एरेज आर लिमिटेड. एरेज आर लिमिटेड. क्या लिमिटेड है? What are the limitations, or like what are the limitations? Fixed in size. Fixed in size मतलब once
created, once array is created, an array's length क्या नहीं कर सकते आप, array's length cannot change. तो इससे क्या होगा, we must know the size in advance. You must know the size in advance. इसका दिक्कत क्या है, और रीसाइज मैन्युअली, मतलब अभी ये लाइन इंपॉर्टेंट है. लेट्स से initially I said I want to store 100 values. Okay, perfect. Now array is full, but I want to add more values. So what is the option? What is the option? Create a new array with bigger capacity. Then क्या करो, पहले array के elements अपेंड तो नहीं होगा ना, पहला array full हो गया है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप. You need to create new array with new capacity. Then copy the content from old array into new array and add the or append the elements in the new array. So that is called as resize manually. Resize manually. अब मैंने सोचा था 100 वैल्यू स्टोर करना है, बट मैंने स्टोर किया एक ही. उस केस में क्या करना पड़ेगा, अब वो तो मेमोरी आप, मतलब इट इज अप टू यू हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट. बट बाद में कोई ऐड करना चाहे तो आप उसको कम नहीं करोगे, मोस्टली क्या करोगे आप, बढ़ाओगे. सो बिकॉज ऑफ दिस either there will be shortage or wastage of memory space. ये आपको पता है. रिजर्व फिक्स्ड इन नेचर का प्रॉब्लम. समझे क्या प्रॉब्लम है. Once array created, array's length cannot change. It cannot increase or decrease. इसकी वजह से क्या होता है, आपको we must know the size in advance, how many values you want to store. Otherwise, अगर नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है how many values you want to store, तो क्या करना पड़ेगा, जितनी बार array full होगा, you have to resize that, you have to create new array, then copy the content from old array into new array and add the elements in the new array. That is something resizing. This is one of the option. Then what is the other problem with array? क्या, operations or methods? No built-in operations or method support or methods. कोई method है क्या array के साथ? Do we have any methods to search elements, delete elements, retry elements? So there is no method support for every requirement. For every requirement, क्या requirement हो सकती है? Such as search, insert, delete, and so many. Developer is supposed to write logic. मेथड सपोर्ट में आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, ओनली वन स्ट्रक्चर. ओनली वन स्ट्रक्चर. आपके पास एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही लीनियर स्ट्रक्चर है आपके पास. इसका फायदा नुकसान क्या, फायदा भी है और नुकसान भी है. सो अगर आपके पास एक ही कंटेंट है, यू डोंट हैव मच ऑप्शंस, यू डोंट हैव मच ऑप्शंस. अब इसमें कैसा है, व्हाट इज दैट, an array is linear. An array is always a linear or continuous memory locations, continuous index sequence. इसका फायदा क्या है,
तो नुकसान क्या है? देर नुकसान ही है। तो आपके पास ऐसे कोई एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टोर ओनली यूनिक एलिमेंट्स, आई वॉन्ट टू स्टोर लेट्स से की वैल्यू, जैसे मैंने स्टूडेंट का आईडी और उसका नाम स्टोर करना है, ऐसा कुछ है क्या की वैल्यू पेयर? नो सच की वैल्यू पेयर, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। यूनिक एलिमेंट्स चेक करने के लिए ऐसे कुछ नहीं, नो यूनिक एलिमेंट्स, ये कुछ नहीं आपके पास, ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। सो आई नीड अ कंटेनर जिसके अंदर बस यूनिक एलिमेंट्स होना चाहिए, आई नीड अ कंटेनर जिसके अंदर मैं की वैल्यू डेटा रख सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास अभी, आई डोंट हैव एनीथिंग। सो यू हैव ओनली वन स्ट्रक्चर। समझे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द एरे? नाउ व्हाट कलेक्शन, बिफोर कलेक्शन वी नो दैट दिस वाज द लाइफ विद द developer. Now what changes now with collection framework? Text in size, you don't need to worry about size. Collection are growable in nature, you don't need to worry about size. Built-in methods, yes, you find n number of built-in methods and we have n number of data structures, we have n number of data structures. So collection framework जो आपको मिला है, so collection framework क्या क्या बेनिफिट्स आपके पास? अब ये इंट्रोड्यूस किया था जावा की 1.2 वर्जन में, इंट्रोड्यूस इन जावा 1.2 वर्जन। fixes all of the above issues. क्या फिक्स करता है कलेक्शन? ये आपके प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या है? यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, यू हैव लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, यू हैव डिफरेंट कंटेनर्स, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट साइज, इट इज ग्रोएबल इन नेचर। सो कलेक्शन is growable in nature, no worry, no fixed size. Then method support, built-in method support, built-in मेथड सपोर्ट, बहुत सारी मेथड्स है, यू डोंट नीड टू राइट लॉजिक, जैसे हमने स्ट्रिंग क्लास देखा तो बहुत सारी मेथड्स थी, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारी आपको मेथड मिलेगी। देन लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे, जैसा आपका रिक्वायरमेंट वैसा आप कंटेनर यूज कर सकते हो। डू आई नीड टू क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम स्क्रैच? नो। डू आई नीड टू वरी अबाउट like size? No. Do I need to worry about methods? No. It is everything is there. Clear यहाँ तक? Now next question. ठीक है, इतना सब कुछ आपने अच्छी अच्छी बातें करी कलेक्शन के बारे में। Now next question is what all different data structures are there? What all different algorithms are there? So first we'll try to understand कौन कौन से अलग अलग टाइप के। आपको ये तो क्लियर है कि अभी आपको साइज के बारे में यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सेकेंड, मेथड सपोर्ट इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। अब ये समझना है कि हमारे पास कौन से अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स है और वो वाले डेटा स्ट्रक्चर्स कब कौन सा यूज करना है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो यहां पर अभी आपके पास एक ही कंटेनर था, अगर आपको सिक्वेंशियल में डेटा स्टोर करना है तो वही ऑप्शन था, but now with collection framework we have different types of containers and each container has its own properties. जैसे एक कंटेनर जिसके मैं बस डुप्लीकेट भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ, आई हैव वन सेट ऑफ कंटेनर, एक कंटेनर जिसमें बस यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, देयर इज अनदर काइंड ऑफ कंटेनर जिसके अंदर मैं की वैल्यू में डेटा स्टोर कर सकता हूँ। सो आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट। आपके पास एक कंटेनर है क्या अभी? नो। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, लेट्स से array list is there, array list class है तो that is one data structure, then we have linked list, then we have vector, then we have stack। अब array list का एक कंटेनर जिसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि जिसमें आप डुप्लीकेट डेटा रख सकते हो, इन चारों में डुप्लीकेट डेटा रख सकते हो, बट देयर इज अ डिफरेंस, ईच कंटेनर वी हैव डिफरेंस। सो array list is like behind this it uses a array,
or it does a resizing of array. Whenever there is a array full हो गया, it will create new array, copy the content of old array into new array. That is one thing. Linked list ये अलग काम करता है. जैसे आपको एक वैल्यू स्टोर करना है तो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा नोड ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा वैल्यू स्टोर करना है दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा, दोनों को लिंक करेगा एंड सो ऑन. दैट इज लिंक लिस्ट. वेक्टर एंड एरे लिस्ट आर सेम, बस एक थ्रेड सेफ है एक थ्रेड सेफ नहीं है. स्टैक जिसके अंदर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट इस तरीके का ऑर्डर मेंटेन करते हो, मतलब द एलिमेंट विच इज एडेड एट द लास्ट विल बी ऑन टॉप ऑफ द स्टैक. जैसे बुक शेल्फ देखा होगा आपने, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन. तो ये आपके पास चार कंटेंट हो गए. उसके बाद आपके पास सेट है, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट. अब ये दूसरा सेट ऑफ कंटेंट जिसके अंदर वो यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट. अब तीनों में क्या फर्क है? हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में फर्क है कि इंसर्शन ऑर्डर उनका एक में मेंटेन होता है एक में नहीं होता है, एक में सॉर्टेड एलिमेंट्स मिलेगा आपको. देन वी हैव अनदर सेट ऑफ प्रायोरिटी क्यू, देन लिंक लिस्ट, वी हैव हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप. So whatever the names I have discussed so far are nothing but names of different data structures. सारे डेटा स्ट्रक्चर सेम होंगे क्या? नो. अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर का अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उसका सेट ऑफ रूल्स है that we need to follow, right? So to understand that, let's try to understand collection framework hierarchy. आई होप आपने ये गो थ्रू किया होगा. मतलब मैंने आपको इनहेरिटेंस के टाइम ये लिख के दिया था, बट आई विल राइट इट वंस अगेन. ओके. Now, in this particular hierarchy of classes and interfaces, let's try to understand. तो यहाँ पर टॉप पे आपका एक क्लास है that is called as but it is an interface. It is an interface. Iterable. Now, iterable is extended by collection. It is also interface. Then we have list. ये सारे इंटरफेसेस है. देन वी हैव लिस्ट. अभी ये सारे इंटरफेसेस है. इंटरफेस में क्या होता है बाय द वे? व्हाट डू वी हैव इनसाइड द इंटरफेसेस? ओनली abstract method, so there is no concrete logic. इसमें बस contract है. Interfaces contains only contract. अब मुझे बताओ ये, we will come to that. Just let's try to understand this hierarchy. So we have list set queue. List we have different implementations. So we have array list. It is a class. Linked list is again a class. Linked ed, it is again a class. Then we have vector. It is a class, and vector is extended by stack. ठीक, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, बाद में I will just draw it somewhere better. So this is one of the thing. Then we have set that is having implementation. Then we have linked hash set. Then set is
extended by sorted set. It is an interface. Then we have navigable set. Tree set. Sorry, it is a class. And we have little bit queue. And it is having priority queue. And there are a lot other things. The same linked list implements that as well. So iterable is interface, collection is interface, list is interface, set is interface. Then we have queue is also this interface. Sorted set interface, navigable set interface, and बाकी सारी ये क्लासेस, ये सारे आपके क्लासेस हैं. These are concrete classes. So iterable on top of, then we have collection, then we have list, set, queue, list implementations, set implementations, and queue implementations. They have one more that is called as map. Interface, then we have hash map. It is a class. Then we have linked hash map. Then we have sorted map, interface. Then we have navigable map, and we have tray map. The class. So this is interface, this is interface, and these are ये कुछ hierarchy है. Now let me get a nice image from Google so that you can remember this. Check, look at this diagram once. Now this will take some time to digest, but आपको अभी ये इतना देख के डरने की जरूरत नहीं है. It is pretty simple. अब आपको करना क्या है? You know that data structures are there, यानी डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स हैं. तो आपको एक अलग अलग कंटेनर का क्या प्रॉपर्टीज है? सब सारे कंटेनर का काम क्या है? ये सारे कंटेनर्स हैं. सारे कंटेनर का काम क्या है? कोई भी कंटेनर इसमें से आप कंटेनर किस मतलब इन जो भी ग्रीन में यहां पर लिखा है मैंने, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो. इन सब का काम क्या है? टू स्टोर एंड मैनिपुलेट. टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यही है.
Let me get some nice image. Done. So what we have seen so far? So we have seen first question, what is framework? What are the advantage, disadvantage of framework? Then what is library? Then what are the data structures and algorithm? Then we talked about R problem and collection framework. So collection framework is a Java based framework, and so on. We talked about some facts. Then we talked about Y collection. So Y collection, before that we understood what was the life with array, what are the issues, and then that issues are fixed in collection framework. Then we talked about collection framework hierarchy. राइट now, अगर आपको इतना सारा सब कुछ पता है so far, now you are done with the first class. check. So let me show you some of the nice image. Google अच्छा इमेज नहीं दे रहा हो. चैट जीपीटी कर सकते क्या? लेट मी चेक. Any questions before I do that? चलो, that's fine. Clear यहां तक? So what you need to understand is कि इतने सारे जो आपके पास क्लासेस एंड इंटरफेसेस हैं, तो आपको मैं कुछ हाई लेवल कुछ चीजें बताने का ट्राई करूंगा. सो लिस्ट, सेट, क्यू, मैप. अभी के लिए 4 सेट ऑफ कंटेनर्स आपके पास. ठीक है, लिस्ट, सेट एंड क्यू. अब जो भी लिस्ट इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, मतलब ये वाले क्लासेस, क्या काम है? तो लिस्ट इंप्लीमेंटेशन क्लासेस यानी एरेलिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये कंटेनर्स का यूज करके आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर, कोई भी कंटेनर इसका यूज करके आप मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप स्टोर कर सकते हो. बट ये वाले जो कंटेनर्स है, इसके अंदर यू कैन स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी डुप्लीकेट. नॉट नेसेसरी डुप्लीकेट ही होना चाहिए, बट अगर डुप्लीकेट है तो यहां पर रख सकते हैं. और दूसरा है आईओ यानी इंसर्शन ऑर्डर. जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स इंसर्ट करे अक्षय, वही ऑर्डर मेंटेन करता हो. क्या है? 2 चीजें. जरूरी है क्या डुप्लीकेट लिखना? अगर है तुम्हारे पास तो रख सकते हो क्या? हाँ, रख सकते हो. जैसे शॉपिंग, आपको शॉपिंग के लिए जा रहे, कोई शॉपिंग लिस्ट होगा, so that can have duplicate elements, right? So if you want to store multiple values or multiple objects, then you can use any of the container. but आपका पहला रिक्वायरमेंट क्या? you want to store multiple values. इसमें से कोई भी कंटेनर उठाओ, आपका काम हो जाएगा. बट उसमें आपका और रिक्वायरमेंट रिफाइन हो गया. क्या रिक्वायरमेंट रिफाइन हो गया? मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर करने का ऑप्शन चाहिए. तो इसमें से कौन कर सकता है? लिस्ट. क्या कर सकता है? लिस्ट. लिस्ट इंप्लीमेंटेशंस. तो ये वाला. और दूसरा है इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स इंसर्ट करे, ऐड करे, वो वाला ऑर्डर आपका मेंटेन रहेगा. दैट इज द ऑप्शन ऑफ लिस्ट. नाउ
समटाइम्स समवन वांट्स कि यार मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए। अब लेट से मुझे सैलरी प्रोसेस करना है लोगों का, लोगों को डुप्लीकेट सैलरी जाना चाहिए क्या? हाँ। अरे ये कौन सा कंपनी है, मुझे भी ले लो उधर, डुप्लीकेट जाता है सैलरी। तो लेट्स आई वांट टू प्रोसेस द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। सो उस लिस्ट में और उस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कैसे ऑब्जेक्ट चाहिए? यूनिक। सो यू वांट टू स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल वैल्यूज, बट आई वांट यूनिक। डुप्लीकेशंस वहां पर अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कंटेनर अगर आपको चाहिए तो आपके पास क्या ऑप्शन है? सेट इंप्लीमेंटेशन। तो उसमें तीन ऑप्शन है। क्या क्या है? हैसेट, लिंक्ड हैसेट एंड ट्री सेट, ये तीन ऑप्शंस आपके पास। यहां पर चार ऑप्शंस हैं। क्यू, क्यू क्यू है। सो वाई क्यू क्यू? सिंपल है इसलिए। वाई क्यू क्यू? ठीक है, यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, दैट्स फाइन, बट व्हाट एक्स्ट्रा यू गेट? मल्टीपल वैल्यूज पे आपके पास कोई भी कंटेंट यूज करो तो चल जाएगा। यू यूज लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, सेट इंप्लीमेंटेशन, फाइन, बट क्यू अगर नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। हम्म। नॉट नेसेसरी फीफो ओनली, नॉट नेसेसरी फीफो ओनली। मंदिर कहीं भी आप जाते हो, वहां पर दो लाइन होता है, दो तीन लाइन होता है। एक नॉर्मल लोग के लिए, आम लोग के लिए, दूसरा नहीं पेड लोगों के लिए होता है, और तीसरा होता है वीआईपी के लिए, एकदम एक्स्ट्रा एक्सप्रेस, राइट? सो सबसे फास्ट कौन सा लेना है? सबसे लास्ट वाला एकदम। सो वी हैव डिफरेंट क्यूज फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट। सो जो वहां पर लोग रुके हैं, दैट इज अ place where people are standing, that is a queue, we call it as a queue. So we have different types of queues. One is normal, that is first in first out, जो पहले आएगा उसको सबसे पहले एंट्री, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा है प्रायोरिटी। दूसरा कौन सा क्यू है? प्रायोरिटी किसको मिलेगा? जिसने सबसे ज्यादा मतलब डोनेशन दिया उसको सबसे पहले एंट्री। सो देयर माइट बी सम अदर हो सकता है जहां पर डबल इंडेड क्यूज हो सकता है, एंट्री भी हो सकता है, जहां एग्जिट होता है वहां से एंट्री हो सकता है सबसे फास्ट। सो डबल इंडेड क्यूज हो सकता है, सो डी क्यू बोलते हैं हम उसको। दोनों साइड से इंसर्शन डिलीशन हो सकता है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज। सो क्यू यानी इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, वेयर वी नीड टू डिफाइन द प्रोसेसिंग ऑर्डर। क्या चाहिए? प्री प्रोसेसिंग ऑर्डर। प्रोसेसिंग ऑर्डर बोल सकते हो आप। प्रोसेसिंग ऑर्डर कुछ डिफाइन करना है, तब आप यूज करो क्यू। सो वी आर डिफरेंट टाइप्स, लेट्स से प्रायोरिटी क्यू है, लिंक लिस्ट है, एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे पहले है उसको, देन प्रायोरिटी हो सकता है, प्रायोरिटी किस बेसिस पर हो सकता है? अलग अलग प्रायोरिटी हो सकता है, वी कैन डिफाइन द डिफरेंट प्रायोरिटीज। So priority cannot be based on one attribute, it can be based on different attributes. So one of the attribute can be like you can define. समझ में आ रहा है? So I told you three requirements. डेटा स्टोर करना है मल्टीपल वैल्यूज, तो इसमें से कोई भी कंटेनर उठाओ, you will be able to do that. But I want to store duplicate elements, then which category? List. I want to store unique elements, set. I want to have some kind of pre-processing order, then क्यू। और प्रोसेसिंग ऑर्डर चाहिए तो क्यू। ठीक। अब आप बोलोगे यहां पर इंटरफेसेस क्यों दिया यार, सीधा सीधा मेथड दे दे हमारा काम इजी हो जाता। ये इंटरफेसेस क्यों दिया है? सो लेट मी टेल यू व्हाई इंटरफेसेस आर गिवन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैं जब भी बोलता हूँ कि इंटरफेस दिया है मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो कोई भी कंटेनर हो उसमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन होना मैंडेटरी होना चाहिए। क्या मतलब कोई भी कंटेनर हो उसमें वैल्यू ऐड करना, उसमें से वैल्यू रिमूव करना, उसमें सर्च करना,
उसकी साइज पता करना, ये कुछ ऑपरेशन हो सकता है दैट मस्ट बी देयर इन एवरी कंटेनर. So what is the contract defined at the top level? Iterable and collection. So collection interface is there. Why it is given on top of? Why it is given? Because it is having a contract. मतलब कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जो भी abstract मेथड होगी तो इन सब में होगी. कोई भी कॉन्क्रीट क्लास होगा उन सब में इसकी abstract मेथड्स होगी ओवररिडन. यस. तो वो क्यों दिया है? बिकॉज टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, कोई भी कंटेनर हो, उसमें बेसिक फैसिलिटी चाहिए. क्या बेसिक फैसिलिटी चाहिए? यू शुड बी एबल टू ऐड एलिमेंट्स, यू शुड बी एबल टू रिमूव एलिमेंट्स, सर्च एलिमेंट्स, और कुछ हो सकता है कुछ फैसिलिटीज दैट आर गिवन इनसाइड द कलेक्शन. तो आप कलेक्शन इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड्स है, दैट मेथड्स आर इंप्लीमेंटेड इन एवरी अदर क्लास, एवरी अदर कॉन्क्रीट क्लास. उसके अंदर सेम लॉजिक होगा या अलग होगा? सेम क्यों लिखेंगे अलग जगह? सेम क्यों लिखोगे आप? अलग लॉजिक होगा या सेम? तो लॉजिक नहीं होगा. अलग क्यों होगा? अरे अलग डेटा स्ट्रक्चर है. तो मुझे बताओ, ग्लास में पानी भरना और टंकी में पानी भरना सेम है? उसमें पानी निकालना, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम. कंटेनर अलग है तो ऑपरेशन भी अलग होंगे. कंटेनर अलग है तो ऑपरेशन भी अलग होंगे. सो नाम भले ही सेम हो बट काम अलग होगा. नाम सेम है बट काम अलग है. सो दैट्स द रीजन यू फाइंड सेम मेथड नेम सेम है बट उसके अंदर काम अलग है. अब मुझे बताओ, यू हैव अ एरे एंड लिंक लिस्ट. एरे में क्या होता है? सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस. लिंक लिस्ट में क्या होता है? यू हैव नोड ऑब्जेक्ट्स. एक वैल्यू शो करना है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दूसरा वैल्यू बनाना है, दूसरा ऑब्जेक्ट, और दोनों के बीच में लिंकिंग. अब मुझे बताओ, दोनों में डेटा ऐड करने का तरीका कैसा है? डिफरेंट है. एरे में कैसे है? डायरेक्टली इंडेक्स यूज करो, न्यू ऐड द एलिमेंट. बट दैट इज नॉट द केस हियर. यहाँ पर क्या करना पड़ता है? आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, नोड ऑब्जेक्ट, उसके अंदर नेक्स्ट, प्रीवियस, फिर डेटा, ये सब कुछ करना पड़ता है. सो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अभी के लिए इतना समझो, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, क्यों दिया है, और उसके अंदर की हायरार्की. तो आपके पास अभी मैंने 3 रिक्वायरमेंट दिया. अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है which allows duplicates list, you want only unique elements set, you want some pre-processing order queue, और ये मैप क्यों चाहिए? So we want to store not single objects. I want to store multiple objects as a key value pair. I want to store objects as a key value pair. You will understand this how that is happening. अब इसको कैसे समझ सकते हो? लेट्स से मेरे पास कैसा कंटेनर है मेरे पास. लेट्स से आई हैव अ कंटेनर, ठीक है, विच इज गोइंग टू हैव दिस इज द कंटेनर, वन ऑब्जेक्ट. उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है. आई हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. मैप की बात कर रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट मैप. सो आई हैव वन कंटेनर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कंटेनर ऑब्जेक्ट्स है. ईच कंटेनर ऑब्जेक्ट्स कंटेन्स की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू. सो इफ यू लुक एट दिस, अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर चाहिए तो मैप जाओ. तो इन दिस मैप कंटेनर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? 3 ऑब्जेक्ट्स है. कितना ऑब्जेक्ट्स है? 3. व्हाट इज द साइज ऑफ दिस मैप? अरे क्या साइज है? ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, और ये. तो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैप? 3. एंड ईच कंट्री, नॉट कंट्री, each entry contains 2 objects. क्या है? 2 objects.
So one object is called as key and another object is called as value. So these are key objects and this is value object. So I have one entry object. So I have one map object that contains entry objects. बस अभी के लिए समझो, एक मेरे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स है और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. Now that object can contain another object and so on. But अभी के लिए इतना समझो, I have one bigger object कंटेनर, उसके अंदर 3 कंटेनर्स है, उसके अंदर की ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर क्या है, यूनिक कीज है. क्या है, की के लिए कैसा चाहिए, यूनिक, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वैल्यू कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. सो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कब यूज करोगे, ऐसा कुछ वैल्यू स्टोर करना है, देन यू आर गोइंग टू यूज मैप. सो मैप ऑब्जेक्ट कंटेन्स मल्टीपल objects of type entry and each entry object contains 2 objects, key value, key and value. अगर आपको ऐसा कुछ डेटा स्टोर करना है then go with the map. उसके अंदर हैश मैप है, लिंक्ड हैश मैप है, ट्री मैप. अब ये लेवल तक ठीक है. मैप का आईडी, नेम, रोल नंबर, नेम. तुम्हारा लेट्स से आई वांट टू स्टोर सम डेटा, लेट्स से आईडी है 1 2 3 और यहां पर नाम हो सकता है, लेट्स से ए बी सी, कुछ भी हो सकता है. लेट्स से मुझे पता करना है कि लेट्स से स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी है और उसके सब्जेक्ट की लिस्ट पता करना है या उसके इंटरेस्ट की, उसको क्या पसंद है, ये भी रख सकते हो. सो दिस इज माय वन एंट्री, दिस इज माय अनदर एंट्री. एग्जाम्पल, बहुत सारी है सब्जेक्ट्स. क्या क्या सब्जेक्ट्स है आपका, स्टूडेंट आईडी है 1, उसका क्या क्या सब्जेक्ट्स है. आपने लेट्स से यूजर आईडी है 1, आपने क्या क्या ऑर्डर दिए, ऑर्डर का भी एक लिस्ट हो सकता है. सो इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट. थिंक ऑफ, इतना समझो, अभी उसको जाएंगे हम बाद में, बट अभी के लिए इतना समझो कि दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक्स. मेक सेंस? थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा आपको. हाँ मेरे चॉकलेट्स लेके आए तुम, ठीक है, फिर पास ऑन कर दो. गुड मॉर्निंग गाइस, आर वी गुड विद दिस? चलो ये हाई लेवल पिक्चर समझे आपको, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको देता है अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स या कंटेनर जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज और ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट. और उसके ऊपर क्या कर सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, मैनिपुलेशन. क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो कंटेंट में, सिंगल एलिमेंट ऐड किया, मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड किया, सिंगल एलिमेंट रिमूव किया, मल्टीपल एलिमेंट्स रिमूव किया, सर्च करना एलिमेंट्स, सॉर्ट करना हो सकता है, कॉपी करना हो सकता है. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस. नाउ इतने सारे कंटेनर्स क्यों दिए, इतने सारे स्ट्रक्चर्स क्यों दिए? वी हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट. अगर आपका पर्पस बस डेटा स्टोर करना है तो यूज करो एरे, इतना क्यों पढ़ रहे हो तुम, राइट? बट इन रियल लाइफ, इन रियल प्रोजेक्ट्स, वी हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पस. सो इफ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, आप इनमें से कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी क्लास यूज कर सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ. इफ यू वांट टू स्टोर 10 वैल्यूज, तो क्या करना है आपको, इनमें से कोई भी क्लास उठाओ, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ एंड यू शुड बी एबल टू स्टोर वैल्यूज. बट इफ योर रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू स्टोर, I should be able to store duplicate, then use list implementations. If I want to store unique elements, go with set. I want to have some kind of processing order, then go with the queue. I want to have some data to be stored as key value pairs, then go with this.
So we have different containers, different data structures for different purpose. ठीक है, चलो यहां पर टॉप लेवल की बात करते हैं. अब ये इटरेबल और कलेक्शन क्या है. अब इटरेबल क्या है. तो बिफोर इट, हाँ, इंटरफेस, वेरी गुड. इटरेबल इज इंटरफेस. कलेक्शन क्या है. इंटरफेस. ये भी इंटरफेस. हो गया क्लास. लिस्ट सेट क्यू, ये भी इंटरफेस है और ये क्लासेस है. डू यू अंडरस्टैंड गाइस. ओके, क्लास खत्म हो गई फिर. हाँ, इटरेबल की बात कर रहा था मैं. अब मुझे बताओ, आप डेटा स्टोर क्यों करते हो बाय द वे. बाद में एक्सेस करने के लिए. फोटोज क्यों निकालते हो इतने सारे. बाद में उसको देखने के लिए. मेमोरीज मतलब बाद में उसे देखने के लिए. मेरा ऐसा, मेरे साथ गड़बड़ हो गया यार. तब हमारे टाइम पे ऐसा गूगल फोटोज वगैरह था, लेकिन इतना नहीं था. मेरे पास एक कॉलेज का सारा मेमोरीज का एक फोल्डर था. ऑलमोस्ट 32 GB का. मेरे पास 16 GB है ऐसे कुछ. तो मेरे पास एक पेन ड्राइव था कॉलेज के टाइम. वो कहाँ गायब हो गया. उसमें हमारी सारी कॉलेज की यादें मिट गई. अब क्या करें अभी, इसलिए मैं कॉलेज के भी याद नहीं करता अभी. हाँ, सो वाई डू वी स्टोर डेटा. बाद में उसे रिट्रीव करने के लिए, राइट. तो रिट्रीव करना मतलब क्या करना. एक एक याद, मेमोरी, फोटो देखना. एक एक आइटम आप क्या करते हो, रिट्रीव करते हो. यानी आइटरेट करना. आइटरेट करना मतलब यू हैव मल्टीपल वैल्यूज, उसमें से एक एक एलिमेंट रीड करना या आइटरेट करना. सो यू हैव मल्टीपल वैल्यूज, उसमें से एक एक वैल्यू रीड करना. दैट इज नथिंग बट अ आइटरेशन. व्हाट इज आइटरेशन. आइटरेट करना मतलब रीड करना, रिट्राइव करना. व्हाट डू यू मीन बाय आइटरेट. रीडिंग और रिट्राइंग द वैल्यूज वन बाय वन. दैट इज नथिंग बट आइटरेशन. अब ये फंक्शनलिटी होना चाहिए कि नहीं हर एक कंटेनर में, या बस एक बार रख दिया उसके बाद एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है. सो दिस फंक्शनलिटी मस्ट बी देयर इन एवरी अदर कंटेनर. होना चाहिए ना. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके मतलब. व्हाट डू यू थिंक, होना चाहिए राइट. सो जावा वालों ने वही सोचा जो आप सोच रहे थे कि ये फंक्शनलिटी होना चाहिए. क्या. यू शुड बी इन अ पोजिशन टू रिट्राइव द डेटा. और उन्होंने मैंडेट कर दिया सबको कि अगर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप बना के दे रहे हो तो उसमें ये फैसिलिटी होना चाहिए. तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया. तो ये गारंटी है कि हर एक कंटेनर कोई भी आप यूज करो डेटा स्ट्रक्चर, यहां पर सब में आइट्रेशन की फैसिलिटी होगी. तो ये कहां पर लिखा उन्होंने. सबसे टॉप, सबसे पहले डेटा स्टोर करने से पहले उन्होंने सोचा कि रिट्राइव का भी ऑप्शन होना चाहिए. सो दैट इज देयर इनसाइड द इटरेबल या आइटरेबल, जो भी बोल रहे हो आप. सो इटरेबल इंटरफेस कंटेन्स वन मेथड that that must be, that is overridden in every other data structure implementation of collection. क्या है. फिर से एक बार. iterable interface contains one method, उसका नाम मैं बताऊंगा थोड़े टाइम में. iterable is an interface that is implemented by every other data structure or implementation class in collection framework. And what is written inside that. उन्होंने बस व्हाट बोला है, इटरेबल में व्हाट बोला है, और ये क्लासेस बताएंगे हाउ. ओवरराइड करना मतलब क्या करना. ओवरराइड मेथड ओवरराइड क्यों करते हो आप. एब्स्ट्रैक्ट है उधर, वो लॉजिक ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है राइट. इटरेबल कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट मस्ट बी ओवररिडन इनसाइड द जो भी कॉन्क्रीट क्लास होगा उसका. सो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं. व्हाट एंड हाउ. व्हाट एंड हाउ. उसके अंदर क्या लॉजिक लिखा होगा. हाउ टू रीड एलिमेंट वन बाय वन. अब मुझे बताओ, आपके पास 10 अलग अलग कंटेनर्स हैं, उसमें से डेटा एक एक एलिमेंट निकालना, ये सेम लॉजिक होगा अलग होगा.
अलग ही रहेगा, राइट। अगर आप क्यू में से डेटा रीड कर रहे हो 1 by 1 अलग होगा, स्टैक में से डेटा निकाल रहे हो अलग होगा, लिंक लिस्ट में से डेटा निकाल रहे हो अलग होगा, एरे में से डेटा निकाल रहे हो अलग होगा। एरे में क्या है, इंडेक्स लगाओ 0 से लेके लेंथ -1 तक। लिंक लिस्ट में वैसा नहीं है आपके पास, आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट गए, पहले नोड गए, उसका यूज करके आप दूसरे नोड गए, फिर वहां से तीसरा एंड चौथा एंड सो ऑन। सो वी हैव लॉजिक डिफरेंट इन डिफरेंट कंटेनर्स इन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। समझे यहां तक? क्या बोला मैंने? हाँ, लॉजिक डिफरेंट होगा। कौन सा लॉजिक? एलिमेंट्स आइटरेट करने का, रीड करने का, रिट्राई करना है फ्रॉम द गिवन कंटेनर और फ्रॉम द गिवन data structure. So where is that logic declared? Iterable, right? So iterable is an interface. This is present in Java dot lang package, और ये सब कुछ उसके नीचे वाला util पैकेज में, ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इनसाइड द java dot util। ये कहां पर रहेंगे? java dot util, ठीक। अब iterable और iterable contains one method. That method is called as iterator। क्या मेथड का नाम है? iterator, iterator, and that method returns। अब मुझे बताओ iterate मेथड क्या करेगी? एक एक आइटरेशन का मतलब क्या हो गया? iterate मेथड get the one element and return that, मतलब एक एक एलिमेंट रिटर्न करेगी। क्या करेगी? रिटर्न करेगी। सो iterable contains iterator method. Iterator returns and one object that is called as iterator, and that iterator is an interface that contains some set of methods, has next। चलो, iterable, iterator, iterator, we'll talk about that। चलो यहां तक तो समझो कि क्या है हाई लेवल। इसका क्यों दिया ये, why it is given? To iterate the elements from given collection। I will use the word now collection, one by one, ठीक। Now what is collection? फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शन नाम का एक इंटरफेस है, और वहां पर एक और वर्ड है कलेक्शंस। क्या? कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शंस। सो कलेक्शंस नाम का एक क्लास है। क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क है, उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस इंटरफेस है, उसमें से एक कलेक्शन नाम का इंटरफेस है, और कलेक्शन नाम का कलेक्शन इंटरफेस कलेक्शंस, ठीक है। दोनों में फर्क है। सो कलेक्शन इज अ इंटरफेस, कलेक्शंस इज अ क्लास, कलेक्शंस इज अ यूटिलिटी क्लास, ठीक है। दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी के लिए कलेक्शन नाम का एक इंटरफेस है। नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट मस्ट बी देयर? उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट फिर से, जैसे मैंने हर एक कंटेनर में क्या चाहिए? आइटरेशन चाहिए, आइटरेशन की फैसिलिटी चाहिए। तो हर एक कंटेनर में इसके अलावा भी और कुछ चाहिए। क्या चाहिए? क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए कंटेनर में? सबसे बेसिक, you should be in a position to add a single element, you should be in a position to add multiple elements, you should be in a position to remove single element, remove multiple elements, you should be in a position to search a single element, you should be in a position to search multiple elements, you should be in a position to check whether it is empty or not, you should be able to get a size, how many elements are there in that particular thing। ये सब कुछ होना चाहिए। ये जैसे आपको लगता है वैसे जावा वालों को भी लगता था, और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर कुछ अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दे दी, और बोला कि ये मेथड होना ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मतलब क्लास आपका कंपाइल टाइम रहेगा। इफ यू डू नॉट ओवरराइट द मेथड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Collection interface contains several abstract methods. If that is not overridden inside the concrete class, what are you going to get?
errors, compile time errors. So it is mandatory now. Is it mandatory for the concrete classes to override the abstract methods from the any interface if it is implementing? Now array list is implementing from whom? Array list is implementing list. लिस्ट की सारी मेथड्स उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, लेकिन लिस्ट के अंदर और भी मेथड्स आ रही है. कहां से मेथड्स आ रही है? कलेक्शन. कलेक्शन में और कहां से मेथड्स आ रही है? इटरेबल. तो बेचारा एरे लिस्ट को क्या क्या करना पड़ेगा? he has to override methods from iterable, collection, list. Now think of tree set. सबसे बेचारा. So tree set has to override methods from iterable, collection, set, sorted set, navigable set. तो कितना काम दिया हो उसको, राइट? आइटरेबल, कलेक्शन, सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ट्री सेट. इसका मतलब सिंपल है कि उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक होगा, ज्यादा फंक्शनलिटी होगा, ज्यादा मेहनत किया होगा, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा उसके अंदर. समझ में आ रहा है यहां तक? आइटरेबल, कलेक्शन, लिस्ट, सेट, क्यू. आइटरेबल की कहानी थोड़ा सा एक बार फिर से देखो. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इटरेबल एंड कलेक्शन. व्हाई दीज इंटरफेसेस आर गिवन? टू हैव सम रिस्ट्रिक्शन. मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन? मैंडेटरी फैसिलिटी चाहिए हमें. क्या क्या फंक्शनलिटी? बेसिक करड वो होना चाहिए, इसलिए वो इंटरफेसेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दी है. अब लिस्ट, सेट, क्यू. अब मुझे बता, फिर से उन्होंने अलग से सेट ऑफ मेथड्स लिखी होगी लिस्ट के अंदर. लिस्ट खाली होगा क्या इंटरफेस? सेट नो, क्यू नो. लिस्ट के अंदर भी और एक्स्ट्रा मेथड्स दी है, सेट के अंदर और एक्स्ट्रा मेथड्स दी है, क्यू के अंदर और एक्स्ट्रा मेथड्स दी है. तो लिस्ट के अंदर कौन सी मेथड दी होगी? व्हाट डू यू थिंक? which will allow duplicate and insertion order. तो ये वाला फंक्शनलिटी चाहिए, तो ये वाली मेथड्स भी उन्होंने दी होगी. सेट के अंदर कौन सी मेथड्स होगी? टू सपोर्ट यूनिकनेस. क्यू के अंदर टू हैव सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर. तो ये कुछ एक्स्ट्रैक्ट मेथड्स उन्होंने दी होगी. सो दे हैव एडेड सम एक्स्ट्रा मेथड्स इन लिस्ट, सेट एंड क्यू. और ये हो गया आपका हायरार्की यहां पर. और फिर जो आपके इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है उसके अंदर लॉजिक लिखा होगा. क्लियर यहां तक? आर वी गुड? शैल वी टेक अ ब्रेक? ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक. हाउ लॉन्ग? So we'll wait again in 15 minutes. क्या? ठीक है, let's take a 30 minutes break. So before I wrap, कल मैंने बहुत ही डिस्टर्बिंग